Yes, Ayush Kumar, your question is what is Piedmont Plain? The plain which is found at the foothills of the mountain. जैसे ही माउंटेन का स्लोप खत्म होता है, at the break of the slope, क्या होता है कि that get deposited by some small boulders, noodles, gravels brought down by river from different parts of mountains and get deposited just at their foothills. So the plain which is formed at the foothills in the form of Bhabhar, Tarai, Duar, etc. They are known as Piedmont Plain. Basically, made up of alluvium, gravels brought by rivers, but not as fertile as the river basins of deltaic region. ठीक है ना? डेल्टा में जितनी फर्टाइल प्लेन होती है उतना ज्यादा फर्टाइल नहीं होता है, as it consists of some bigger size of noodles, boulders, kankars, ठीक है ना, gravels brought by river from mountainous side. So that's just at the foothills of the mountains, the plain which is formed is known as Piedmont Plain. Is it clear, Ayush? Yes, ma'am. Yes. Any other questions from other student? अभी जब तक और बच्चे एंट्री कर रहे हैं, you may ask. ठीक है ना, you can ask. I am here to solve your doubts. Before starting the topic soil erosion and soil conservation, I think that I have already started it in previous class. Start हुआ था ना, शुरू जस्ट हुआ था. Yes, ma'am. हाँ, तो आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले और टॉट पोर्शन में जहाँ पे जिसको भी कोई कंफ्यूजन हो प्लीज आस्क, क्योंकि आज तो ये टॉपिक ओवर हो ही जाएगा. So if you are having any confusion, then student you may ask. चलो अब तो टाइम भी हो गया 11:31, तो हम लोग शुरू कर सकते हैं. Only 5 students have joined the class. 4 students including me, it is 5. Okay, let us begin. जो भी हैं, जो हैं उनको तो कम से कम हम बता दें. So our topic is soil erosion and soil conservation. So do you know, any one of you, what do you mean by soil erosion? What is soil erosion? Anyone? Ma'am, the removal of top layer of soil by agents of gradation is known as soil erosion. Very good, Ayush. Removal of top layer of soil by agent of gradation. Sameer, बताओगे, what do you mean by agent of gradations? Ma'am, water, air. Yes, water, wind, है ना, glacier, running water in the form of river, channel of water, glacier, wind, which is continuously active in the process of gradation. समतलीकरण की प्रक्रिया में जो continuously active होते हैं, ठीक है ना. How they act as agent of gradation? By causing erosion in one hand, by transportation of materials, and by causing deposition on the other hand. In this way, they are involved in leveling the land and making balance of land resources. So these agents of gradations are, which are involved in the process of leveling of land, they are river, running water, wind, moving air, wind, glacier, etc. Mostly in larger part of the country, the main agent of gradations are either running water or wind. The activities of glaciers are concentrated at the higher slopes of mountain in the region of snow line area, है ना. स्नो कवर्ड एरिया में ग्लेशियर्स का एक्शन ज्यादा होता है, बाकी रिवर और विंड का ही ज्यादातर प्रीडोमिनेंट एक्शन है. तो soil erosion refers to the removal of top layer of soil either from the action of wind or from the action of running water. Running water
बरसात का पानी हो सकता है, डिफरेंट चैनल्स का पानी हो सकता है, मेन रिवर का हो सकता है, ट्रिब्यूटरीज का हो सकता है। किसी भी तरीके से जो बहता हुआ जल जब ऊपर के लेयर को बहा करके उस लैंड का फर्टाइल पार्ट को बहा कर ले जाता है, then the land become infertile, and that infertile portion and removal of top layer or fertile part of soil is called soil erosion. The denudation of soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. Denudation means कटाव, soil का जो कटाव होता है नदी के द्वारा, हवा के द्वारा, उस denudation को which make the soil uneconomic in nature, unfit for agricultural activities, that is called soil erosion. ठीक है? In India, so any question in soil erosion? What is soil erosion? The denudation of soil cover or the removal of soil by different agent of gradations like river and wind, which make the land unfit or uneconomic in nature, that is called soil erosion. The process of soil formation and erosion go on simultaneously, and generally there is a balance between the two. अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर में इरोजन एंड डिपोजिशन दोनों साथ साथ चलता रहता है। और जब नेचुरल वे में इरोजन होता है तो कहीं इरोजन होता है तो कहीं डिपोजिशन होता है, क्योंकि नेचर का काम है टू मेंटेन द लेवल ऑफ लैंड, इसीलिए वो पहाड़ को काटती है और गड्ढे को भरती है ताकि समतलीकरण किया जा सके, लैंड को लेवल किया जा सके। अगर नेचुरल प्रोसेस से होता है कुछ कुछ तो वहां पे बैलेंस मेंटेन रहता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, वी ऑल नो दैट लैंड इज फिक्स्ड एसेट, ठीक है, एंड द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ लैंड और लिथोस्फीयर is consist or is formed of both organic and inorganic matters, loose material, the topmost layer or loose particles of topmost layer of the lithosphere, which consist of both organic and inorganic materials, are called soil, and that soil provide basis for cultivation of crops and satisfy our basic needs of fooding, clothing, etc. So as land is fixed and we have to satisfy the increasing needs of increasing pressure of population, so sometimes unwanted human activities, sometimes unwise action of human beings can also cause soil erosions and disturb the balance of nature, and that make the land or that resulted into depletion of soil and depletion of land resource. Here in this topic, soil erosion and soil conservation, here we will study about the denudation or removal of soil by water, running water, removal of soil by wind, and their types, different types of erosion. Okay? Sometimes this balance is disturbed due to human activities like deforestation, overgrazing, construction and mining. Means in सब का मतलब एक ही हुआ कि while satisfying our needs and development opportunities, sometimes we engaged in unwise action and we can excessively utilize our land and soil resources, which resulted into its erosion and depletion. While natural forces like wind, glacier and water lead to soil erosion, the running water, now come to the role of running water or river. How river cause soil erosion? River generally cause soil erosion in two different forms. पहला forms क्या है? When the running water or river cuts through the clayey soil, जहाँ पे चिकनी मिट्टी होती है, fine particles होता है, जहाँ का टॉप लेयर क्लेई सॉइल से बना होता है, वहां पे खास करके जेंटल स्लोपी एरिया में रिवर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक डीप चैनल्स लाइक गली। जब वो सॉफ्ट नेचर ऑफ सॉइल के एरिया से कोई रिवर तेजी से हाई स्पीड में मूव करती है, फ्लो करती है, तो वो सॉफ्ट सॉइल को डीप कटिंग करती है,
और बीच बीच में कैसा नाली लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। कटाव इतना होता है कि लगता है गहरा नाली जैसा बीच बीच में बन गया है, वो जहां जहां से रिवर होकर गुजरती है। That cuts clay soil and make deep channel-like structure. That deep channel-like structure in the clay soil area are called gullies. ठीक है, इसको क्या कहते हैं? गलीज। और इसी तरीके का जब बहुत सारे गलीज आपस में मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे किसी रिवर के द्वारा, आगे में किसी उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा दूसरे एरिया में, और जब बहुत सारे गलीज आपस में मिल जाते हैं, that make the land uneconomic in nature, that make the land unfit for cultivation and develop bad lands. मध्य प्रदेश का चंबल बेसिन में इसी तरह का बैडलैंड्स है, जिसको कि चंबल रेविन्स के नाम से जाना जाता है। So how gully erosion is caused? By denudation of water. When running water enters in the region of clay soil area, they make deep channels like structure by denuding the soil of that area, which is known as gully erosion. Large scale gully erosion may resulted into the formation of badlands. Badlands, as the name indicates, shows the land which is unfit for cultivation. Such badlands are mostly found in the Chambal basin, where it is called ravines. What is the name? एक नंबर का क्वेश्चन में आ सकता है. What is the name given to the badlands of Chambal basin? What is the name given to the gully erosion found in Chambal basin? क्या लिखेंगे? मैम ravines. रेविन्स नाम दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से गली इरोजन जो है दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ badlands in course of time, which make the soil uneconomic for cultivation. Sometimes water flows as a sheet over large area down a slope. आप सब जानते हैं रिवर की जर्नी के बारे में। रिवर का 3 स्टेजेस को आइडेंटिफाई किया गया है, आप लोग सब, जिसको कि ह्यूमन बीइंग का एज से भी कंपेयर किया गया है। यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड ओल्ड स्टेज। ठीक है, यूथ स्टेज कब होता है रिवर का? व्हेन इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट ग्लेशिएटेड पार्ट ऑफ माउंटेन्स और डिफरेंट पार्ट ऑफ माउंटेन्स, जहां से इसको सोर्स मिलता है। जैसे कि गंगा का सोर्स है गंगोत्री, यमुना का सोर्स है यमुनोत्री, रिवर ब्रह्मपुत्र का सोर्स है मानसरोवर लेक, रिवर इंडस का सोर्स है कैलाश पीक। यहाँ से ये ओरिजिनेट होती हैं, राइज करती हैं। ठीक है, तो ये राइज करने के साथ पहाड़ी एरिया में, चूंकि पहाड़ पर स्टीप स्लोप होता है, अनइवन माउंटेनियस ट्रैक्स होता है, तो यहाँ पर इनका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। और ऐसे भी यूथ स्टेज में, अभी तुम बच्चों को इतनी गर्मी में भी अगर कोई बोल देगा कि चलो बाहर का धूप में मैदान में खेलते हैं, तो तुम लोग जाकर खेलने के लिए तैयार हो जाते हो। क्यों? यू आर इनर्जेटिक इन नेचर। आपका जो एज है ना, आपका एनर्जी लेवल इतना है कि आप इस स्कॉचिंग रेज में भी तैयार होते हैं खेलने के लिए। ठीक है ना? तो रिवर भी अपने यूथफुल स्टेज में काफी इनर्जेटिक होती है और काफी तेजी से उछलते कूदते पहाड़ी एरिया को क्रॉस करती है, और इस समय इनका स्पीड ज्यादा होता है, तो ये अपना मैक्सिमम इरोजन परफॉर्म करती हैं। जैसे ही आपका, चूंकि पहाड़ी एरिया इज कवर्ड बाय अनइवन माउंटेनियस ट्रैक्स, हियर रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट चैनल्स। ठीक है ना, और सब तरह से फ्लो करके आती है। और जैसे ही ये फुटहिल्स में उतरती है, जहां पे स्लोप खत्म होता है और प्लेन की शुरुआत होती है, वहीं पे देखोगे कि डिफरेंट चैनल्स ऑफ वाटर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मेन रिवर। तो उसी ब्रेक ऑफ स्लोप में जब कई सारे रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी आपस में मिल जाती हैं और प्लेन एरिया में इंटर करती हैं, जेंटल स्लोपी एरिया में इंटर करती हैं, तो एक बड़े एरिया में ह्यूज वॉल्यूम के साथ फ्लो करती हैं और अपने साथ ऊपर का, प्लेन का ऊपर का लेयर को, टॉप मोस्ट लेयर को बहाकर ले जाती हैं।
If this type of erosion and removal happens, then it is known as sheet erosion. Is it clear? Sheet erosion, SHEET, sheet, mostly found at the mature stage of river. रिवर जब अपने प्रौढ़ावस्था में यानी कि प्लेन एरिया में इंटर करती है, वहां पर कई नदियां अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ ज्वाइन करके फ्लो करती हैं ओवर अ लार्ज एरिया एंड वॉश्ड अवे द टॉप लेयर ऑफ सॉइल. दैट टाइप ऑफ इरोजन इज कॉल्ड शीट इरोजन. क्या कहते हैं? शीट इरोजन. रिवर के सेकंड स्टेज में ज्यादातर होता है, जैसे कि गंगा टुगेदर विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्रा टुगेदर विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज. जब ट्रिब्यूटरीज मिल जाएंगी तो नदी का पार्ट और चौड़ा हो जाएगा ना, तब ये बड़े एरिया में जब अगर इरोजन करती हैं तो उस तरह का इरोजन ओवर अ लार्ज एरियाज आर कॉल्ड शीट इरोजन. In such cases, in sheet erosion, top soil is washed away, and this is known as sheet erosion. Any confusion in sheet erosion? No, ma'am. आगे बढ़ते हैं. अब एक तीसरा एजेंट ऑफ ग्रेडेशन की बारी आती है, which also act as a agent of erosion, agent of transportation and agent of deposition. उसमें नाम आता है विंड का, क्योंकि रिवर और विंड का ही रोल डोमिनेंट होता है सेटलमेंट एरिया में. ये ज्यादा मिलती है. ग्लेशियर का रोल जो है वो कंसंट्रेटेड होता है हाई माउंटेनियस एरिया में और हाई लैटिट्यूडनल एरियाज में. तो विंड इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ इरोजन. The action of wind, where the action of wind is most prominent, कहाँ पे ज्यादा होता है? In which part action of wind is most common? Wind का action सबसे ज्यादा कहाँ पे common होता है? In the form of agent of gradation. कहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं? Any one of you? कोई बताएंगे कि विंड का एक्शन कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है? Action of wind is mostly common in desert and semi-desert area. वहां पे क्यों इनका विंड का एक्शन ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है? Because that region is free from any kind of vegetation. That region is free from settlement, buildings, natural cover of natural vegetation, and is generally experience extreme dry conditions. यहाँ पे wind जो है, the land is exposed to wind and wind flow at high speed. Wind जो blow करती है उसका speed high होता है, and that carried away large amount of sand in suspended form with them and get deposited in other areas. That deposition may lead to the formation of sand dunes. If formation of sand dunes occur in settlement area, that gives rise to desertification. उससे क्या होता है? Desert का extension बढ़ता है, and that resulted into qualitative depletion of soil resources or land resources. Quantitative depletion. डेजर्ट का एक्सटेंशन बढ़ेगा ड्यू टू विंड इरोजन, तो क्या होगा? एक तो लैंड हमारे पास ऐसे ही कम है, उसके बाद डेजर्टिफिकेशन यानी कि डेजर्ट का एरिया बढ़ेगा ड्यू टू विंड इरोजन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय विंड, बाय देयर डिपोजिशनल एक्शन. कहीं से उड़ा रहा है और कहीं जाके रेत को जमा कर रहा है. तो इस तरह का इरोजन कॉज्ड बाय विंड in the area of desert and semi desert resulted into wind erosion. ठीक है. नेचुरल जनरली फ्लैट एरिया और सेटलमेंट एरिया में भी होता है, लेकिन जहाँ पे वेजिटेशन कवर ज्यादा होते हैं वहां पे विंड का स्पीड कम होता है. जहाँ पे वेजिटेशन कवर ज्यादा होंगे वहां पे रनिंग वाटर का स्पीड भी कम होता है, तो इरोजन कम होगा. लेकिन जहाँ पे वेजिटेशन कवर कम होते हैं वहां पे स्पीड तेज होता है और इरोजन भी ज्यादा होता है. So wind erosion may cause desertification, which in turn resulted into quantitative depletion of soil resources and make the land
unfit and uneconomic for cultivation and other economic use. ठीक है. Soil erosion, besides erosion by water, besides erosion by wind, soil erosion is also caused due to defective methods of farming. सबसे पहले defective method of farming, हमारे यहाँ चूंकि लैंड फिक्स्ड एसेट है और हम ज्यादा से ज्यादा वेस्ट लैंड को एरेबल लैंड में, कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिक लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं. चूंकि हमारा पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रहा है तो उसके इंक्रीजिंग डिमांड को पूरा करने के लिए हम मैक्सिमम कल्टीवेशन करते हैं. और अब हमारा कुछ जेंटल स्लोपी एरिया ऑफ माउंटेन्स आर नॉट अनटच्ड फ्रॉम कल्टीवेशन. लेकिन अगर वहां पे विदाउट प्लानिंग हम कल्टीवेशन करें, अब माउंटेन है तो स्लोप होगा तो ब्रेक भी होगा स्लोप में, तो कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे ही बिना प्लानिंग का कर लेंगे अगर कल्टीवेशन, दैट मे रिजल्टेड इनटू इरोजन. हमारी मेहनत भी बर्बाद जाएगी अगर बिना कोई मैनेजमेंट का हम वहां पे डिफेक्टिव मेथड में कल्टीवेशन करेंगे. लगाए छोटे छोटे पौधे, ऊपर से तेज पानी आ रहा है, नीचे जो लगाए बिना मैनेजमेंट का वो भी बहा कर ले जाएगा. तो डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग कैन ऑल्सो कॉज सॉइल इरोजन. इवन प्लेन एरिया में भी सपोज करो, जैसे कि डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग में एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी है. शिफ्टिंग कल्टीवेशन से क्या मैक्सिमम बेनिफिट हमको मिल जाता है? प्रिमिटिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग हम यूज करते हैं और वहां पे हम कोई मैनेजमेंट नहीं करते हैं, कोई इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन नहीं करते हैं, एक ही तरह का क्रॉप लगातार ग्रो करेंगे, तो वो क्रॉप जो सॉइल से जो एक तरह का न्यूट्रिएंट्स निकालने का काम करता है वो लगातार निकलता रहेगा और एक समय आएगा कि दैट लैंड इज अनसुटेबल फॉर कल्टीवेशन. तो उस तरह का मेथड जो पुराना ओल्ड टेक्निक्स विदाउट एनी ओल्ड मेथड्स, विदाउट एनी प्रॉपर मैनेजमेंट जब हम करते हैं तो वहां पे भी धीरे धीरे लैंड अनइकोनॉमिक होता जाता है. पहाड़ पर भी अगर बिना सोचे समझे ऊपर नीचे जैसे तैसे प्लांटेशन क्रॉप का कर दिए, पेड़ लगा दिए, तो वहां पे भी आपका इरोजन का सामना करना पड़ता है. वो लैंड भी धीरे धीरे अनइकोनॉमिक इन नेचर होता है. सो डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ सॉइल इरोजन बाय ह्यूमन बीइंग. तो उसको भी हम लोगों को चेक करना है. बेहतर है अगर इफ वी यूज माउंटेन जेंटल स्लोप्स फॉर कल्टीवेशन, then we should practice terrace farming by making steps and terraces at the same slopy area. वहां पे क्या करेंगे, थोड़ा सा वैसा खेत तैयार करेंगे और जहां पे ज्यादा स्टीप होगा वहां पे कटिंग करके सीढ़ी नुमा बना देंगे. कंटूर प्लोइंग करेंगे, एक समान जहां पे हाइट है उसको चारों तरफ से उसको प्लो करेंगे. तो कंटूर प्लोइंग, टेरेस फार्मिंग प्रमोट अगर करेंगे माउंटेन स्लोप पर तो ये आपका मॉडर्न टेक्निक है. प्लेन एरिया में मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर अगर प्रैक्टिस करते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग, आपका मल्टीपल फार्मिंग, तो हाँ सर, हेलो, हाँ, स्टाफ मेंबर तो नहीं खाए थे, हम तो नीचे खाना खिला रहे थे. नहीं, मंगला क्रॉकरी खुद आपका क्लर्कियल स्टाफ, ऑफिस स्टाफ को बुला के कराया था और कोई टीचर नहीं. लंच में लास्ट में हम लोग जो वहां पे सर्व किए थे, हाँ, हम थे, अनीता मैम थी, आराधना मैम, निधि मैम, रेशम मैम, सोनम मैम और उर्वशी, बस. चौथा पांचवा कोई नहीं, और कोई नहीं खाया था. बस इससे ज्यादा कोई नहीं. ठीक है सर, ओके. हाँ, तो बता रहे थे बच्चों कि डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सॉइल इरोजन. तो इसको कैसे सही करेंगे? बाय डेवलपिंग स्टेप फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, कंटूर प्लोइंग. और प्लेन एरिया में कैसे करेंगे इसको सही? एक परंपरागत खेती को छोड़कर बाय अडॉप्टिंग मॉडर्न टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर. मतलब कि अगर हमको खेती करना है
तो अगर एक सीजन में ये फसल उगाए, धान उगाए, तो अगला सीजन में गेहूं उगाएंगे, फिर दलहन लगाएंगे, नाइट्रोजनस प्लांट है, दाल लगा देंगे, और उसके बाद फिर कुछ चना लगा देंगे, फिर क्रॉप मतलब चेंज कर करके, या फिर स्ट्रिप क्रॉपिंग करेंगे, एक रो में कुछ और, दूसरे रो में कुछ और। इससे क्या होगा, एट द सेम टाइम जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स निकलता है वो उतना नहीं निकलेगा, मतलब हर तरह का न्यूट्रिएंट्स थोड़ा थोड़ा बाहर निकलेगा, जो कि अगली बार में फिर मेंटेन होगा नेक्स्ट सीजन में जब हम दूसरा क्रॉप ग्रो करेंगे। तो अभी जो ग्रो किए हैं उससे जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स निकला वो नेक्स्ट सीजन में नेचुरली रीगेन कर लेगा जब हम दूसरा क्रॉप ग्रो करेंगे। और लगातार धान लगा रहे हैं तो लगा रहे हैं, शुगर केन लगा रहे हैं तो लगा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स का बिल्कुल कमी हो जाएगी सॉइल में, विच मेक इट अनफर्टाइल इन नेचर। ठीक है, तो इन प्लेन एरिया फॉर making soil conservation, for preventing soil from being eroded, we need to practice new techniques of agriculture, strip cropping, contour plowing, crop rotation, multiple farming, mixed farming, etc etc etc। ठीक है, जरूरत पड़ने पर लैंड को खाली छोड़ने के बजाय उसमें फॉडर क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, ग्रासेस लगा सकते हैं, that also prevent soil erosion। So now up to this topic we come to know about different types of erosion caused by water in the form of gully erosion, sheet erosion caused by wind in the form of wind erosion like extension of desertification, erosion due to defective methods of farming। Now here we need to know how these erosion can be stopped, how can we prevent soil erosion, how soil can be conserved। As we know that soil is considered as one of the most important resource, as it directly helps in plant growth of vegetations, and satisfy our basic needs and helps in maintaining ecological balance। So this must be conserved। कैसे conserve करेंगे? By planting more and more trees। सबसे पहला काम क्या करेंगे? Promoting afforestation। What is afforestation? Any one of you? Afforestation किसको कहते हैं? Planting more and more trees। इससे क्या होता है? That check the speed of wind and water, that allow percolation of water inside the earth, that maintain humidity on the land or moisture in soil, that provides pores spaces in soil which helps in aeration and percolation of water। इसीलिए हमको ज्यादा से ज्यादा वेजिटेशन कवर लगाना चाहिए। इसके अलावा that also increases organic components in soil, in turn humus components in soil, which increases the fertility of soil। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? पहला स्टेप्स क्या है? For soil conservation and to prevent soil erosion is promoting afforestation। दूसरा क्या है? Taking legislative measures against deforestation। एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना है और डिफॉरेस्टेशन को डिस्करेज करना है। और डिस्करेज करने के लिए अगर जरूरत पड़े तो कानून भी बन सकता है, ताकि लोग जानबूझकर जंगल को काटने का, बिना मतलब जंगल को काटने का काम ना करे। अगर कटता है कहीं डेवलपमेंट के लिए तो वैलिड रीजन होना चाहिए, गवर्नमेंट से परमिशन होना चाहिए। और यही कारण है कि आजकल गवर्नमेंट ने कई सारा फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत कई सारे रूल्स रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट किया है कि अगर कहीं पे हाउसिंग सोसाइटी है, कोई अपना घर बना रहे हैं तो 3 से 5 पेड़ लगाएं। अगर उनके घर में कोई बड़ा छायादार वृक्ष है तो उसको बिना परमिशन का ना काटें। तो इस तरह के नियम बने हैं कि घर में भी कम से कम 3 से 5 पेड़ लगने चाहिए। और एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करने के लिए आपका जितने भी हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड विथ एफॉरेस्टेशन और प्लांटेशन प्रोग्राम। इसके अलावा हम एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करने के लिए वन महोत्सव, इन्वायरमेंटल डे
ये भी सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल फेस्टिवल में पेड़ लगाओ अभियान, इस तरह का चीज को भी प्रमोट किया जाता है। कोई भी अच्छी बात हो रही है तो उसमें पेड़ लगाकर उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो इस तरीके से हम एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करके आपका सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन को डिस्करेज करें बाय टेकिंग लेजिस्लेटिव measures and by generating awareness among common people regarding the importance of forest। और क्या कर सकते हैं? by developing modern methods of farming। modern methods of farming practice करके जो कल्टीवेबल लैंड है उससे मैक्सिमम प्रोडक्शन को भी इंश्योर करेंगे और फर्टिलिटी को भी मेंटेन करेंगे। ठीक है। Modern inputs of agriculture can also be used for maintaining fertility of soil। और क्या कर सकते हैं? For restricting desertification। हाँ, for checking desertification। डेजर्ट के एक्सटेंशन को चेक करने के लिए डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट में रोज ऑफ ट्रीज एंड शेल्टर बेल्ट्स कैन बी मेड। बना सकते हैं रोज ऑफ ट्रीज। अब ये है क्वेश्चन उठ सकता है कि मैम डेजर्ट में कैसे पेड़ लगेगा, वहां तो हॉट एंड ड्राई कंडीशन है। तो वैसे ही पेड़ लगाएंगे जो वहां ग्रो कर सके। कुछ थॉर्नी बुशेस ही लगा देंगे, कुछ कैक्टस ही लगा देंगे, कुछ वैसे पेड़ लगा देंगे जो कि कम पानी में सरवाइव कर सके। तो इस तरीके से रोज ऑफ ट्रीज और पेड़ों का झुरमुट बनाने से दैट कैन चेक द स्पीड ऑफ विंड एंड रिस्ट्रिक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स के फॉर्मेशन को रोकेगा, सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करेगा विद इन डेजर्ट, डेजर्ट के बाहर नहीं। और इस तरीके से डेजर्टिफिकेशन को चेक कर सकते हैं बाय मेकिंग शेल्टर बेल्ट, बाय मेकिंग रोज ऑफ ट्रीज इन डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट। जिस भी तरह का हो वैसा लगाएंगे। इन हिली एरियाज फॉर रिस्ट्रिक्टिंग सॉइल इरोजन वी कैन प्रमोट टेरेस फार्मिंग एंड कंटूर फार्मिंग। ठीक है। मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग अदर कल्टीवेबल लैंड में स्ट्रिप फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड फार्मिंग, ये सब के तरीके से करके सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। तो दूसरी ओर माउंटेन स्लोप पर टेरेस फार्मिंग, कंटूर प्लॉइंग को प्रमोट करके हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। ठीक है। Besides this, we should always check overgrazing by providing grazing land। grazing land management होगा, ओवरग्रेजिंग को चेक करेंगे तो भी हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। बाय यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे वो माइनिंग हो, हम इसको रोक नहीं सकते हैं बिकॉज दैट इज द डिमांड ऑफ मॉडर्न टाइम, दैट इज डिमांडेड फॉर लीडिंग हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फॉर इंक्रीजिंग इनकम। तो उसको रोक नहीं सकते हैं। But by using latest technology, we can check the erosion. ठीक है। We can check the pollutants caused due to developmental projects. So in this way, we can check soil erosion and prevent soil from being eroded and conserve soil. So your chapter is completed. This chapter. If you are having any query, then please ask। आप पूछ सकते हैं अगर किसी को कोई दिक्कत है। मैम कंटूर प्लगिंग मतलब? कंटूर प्लॉइंग क्या होता है ना, पहाड़ देखा है कभी? देखो पहाड़ जब चढ़ाई करते हो कहीं भी हिल स्टेशन में जाओ, यहाँ पे कोई पहाड़ वहाड़ हो, चढ़ते हो तो देखे होगे कि कभी चलते चलते प्लेन आ जाता है और कभी कभी चढ़ाई करना पड़ता है ना। तो एक स्लोप पर जहां पे थोड़ा सा जेंटल है, थोड़ा सा फ्लैट सरफेस है, उन सबको एक स्लोप में चारों तरफ से ये करके साफ करके क्लियर करके उसमें क्यारी बनाकर पेड़ लगाने की प्रक्रिया को कहते हैं कंटूर प्लाइंग। ठीक है ना। पहाड़ तो चारों तरफ से पहाड़ है, तो उस तरह से जो गोलाकार एक फ्लैट लैंड में जो हम बीच बीच में खेती का काम करते हैं, रोज ऑफ ट्रीज लगाकर या क्रॉप लगाकर, उस तरह का फार्मिंग को कंटूर प्लॉइंग कहते हैं। इसमें कोई सीढ़ी जैसा बनाने का जरूरत नहीं है। और जहां पे कंटूर प्लॉइंग नहीं हो सकता है, थोड़ा सा फ्लैट है फिर काफी स्टीप है, तो वहां पे कटिंग करके स्टेप सीढ़ी जैसा बनाएंगे। आजकल तो देखते हो पहाड़ चढ़ने के लिए भी लोग सीढ़ी बना देते हैं ना,
तो जहाँ Yes, पे ma'am. सॉइल है वहां पे सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर बनाकर उसमें खेती करने की प्रक्रिया को कहेंगे स्टेप फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग। सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर पहाड़ पर बनाकर समान ढाल वाला एरिया को में खेती करेंगे, और जहाँ पे ज्यादा ब्रेक होगा स्लोप में वहां पे कटिंग करके जैसे सीढ़ी उतरते हैं ना वैसा करके टेरेसेस बनाएंगे और स्टेप फार्मिंग करेंगे। Yes, ma'am. और मैम चेकिंग ऑफ सॉइल इरोजन का पॉइंट्स एक बार रिपीट कर दीजिए ना। हाउ टू चेक सॉइल इरोजन? सबसे पहले बाय प्रमोटिंग एफॉरेस्टेशन, उसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कई तरीके से, है ना। एफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज बाय डिस्करेजिंग डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन को चेक करेंगे, रोकेंगे। एंड फॉर रिस्ट्रिक्टिंग डिफॉरेस्टेशन वी कैन टेक लेजिस्लेटिव मेजर्स ऑल्सो, सरकार भी उसमें कुछ कानून बनाकर, कड़े कानून बनाकर इसको चेक कर सकती है। उसके बाद हो जाएगा फॉर रिड्यूसिंग द एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट वी शुड मेक rows of trees and shelter belt in desert and semi desert area which is helpful in stabilizing sand dunes. In mountainous area for checking soil erosion we can promote terrace farming and contour plowing, कंटूर फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग को प्रमोट कर सकते हैं। फॉर प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन इन कल्टीवेबल लैंड वी शुड प्रमोट न्यू टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर लाइक इंटरक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड मल्टीपल फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कल्टीवेबल लैंड का भी सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। एक मिनट बेटा। हाँ अच्छा, क्या चीज का ओटीपी आया है? ओटीपी आए भी नहीं किया है अभी। अभी तो अलर्ट एयरटेल डिजिटल टीवी का है। हाँ नहीं आया बेटा। ठीक है, नहीं है ना मम्मी। तो हाँ तो लिखे डिफरेंट मेथड्स टू चेक सॉइल इरोजन। इज देयर एनी कंफ्यूजन? नो मैम। चलो, और बाकी डिफरेंट सॉइल टाइप्स में से अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। 1.5 मिनट बच रहा है, फिर कट जाएगा बेटा। कुछ हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लें क्या? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर? कैसा है? आयरन ओर इज विच टाइप ऑफ रिसोर्स? एनीवन? It is non-renewable resource. Under which of the following type of resource can tidal energy be put? किस तरह का है tidal energy? Replenishable. हाँ, replenishable means which can be used again and again. Which of the following is the main cause of land degradation in Punjab? ऐसे आप लोग पढ़ चुके हैं। Degraded land. Over irrigation. Yes, very good. Over irrigation is the main cause of land degradation in Punjab. महाराष्ट्र गुजरात में कौन है? Which is the main cause of land degradation in Maharashtra, Gujarat? Anyone?
वहां पे ओवर ग्रेजिंग है, समझ गए ना। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विच इज द मेन कॉज ऑफ